Allah. Okay, so we've got a question. Let's see who's raised his hand. Amar Khan. जी Amar Khan, आपका क्या सवाल सर है? जी जी मेरा क्वेश्चन है कि आपने ना एक कोर्स रिकमेंड किया था एसक्यूएल फॉर डेटा एनालिसिस। अगर उसके टॉपिक्स देखें तो फर्दर डिवाइड हुआ है। लाइक बेसिक एसक्यूएल के 4 घंटे आ रहा है, एसक्यूएल जॉइंट्स के 5 घंटे है, एसक्यूएल एग्रीगेशन के 6 घंटे है, और इसी तरह ना सब चीज़ों के 5 5 और ये तो बहुत लंबा कोर्स हो जाता है। तो क्या ये करना मस्ट है या फिर हम कुछ रैंडम ट्यूटोरियल्स फॉलो कर सकते हैं? नहीं, this course is a must. You have to follow it. और आपके पास ये आपने सारा 1-2 दिनों के अंदर खत्म नहीं करना। आपके पास पूरा हफ्ता है ये वाला जिसके अंदर आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। And a week is more than enough to cover this whole course. It is highly recommended because it's got all the necessary things. It's got all the, hands-on practical labs. It's got all the proper appropriate, you could say, tasks that you need to know to get a proper hands-on for SQL. ओके बिकॉज क्योंकि ओवरऑल 31 आवर्स का कोर्स है। तो बिल्कुल ऐसे ही है. It is highly recommended, and I would, by the end of this training session, not मतलब कि overall when I say this training session, right now I mean by the end of this whole training program, आपको जो है इसको complete करना है within 5 weeks. 5 weeks are more than enough to cover this whole course. So once you have proper hands-on on these exercises, you will be graded accordingly. तो आप लोग काइंडली इसको कंप्लीट कीजिएगा और आप लोगों ने अपनी प्रोग्रेस शेयर करनी है. यू हैव टू, आई बी चेकिंग the exercises, the tasks, the approaches that you've done. We'll be discussing anything that you need to know, how to optimize queries और इन सारे मामलात के बारे में. But I would recommend doing it within this week for those who can, because the next sessions might get a little, interactive more. They have their own content that needs to be done. Okay, so it's 11:15. I guess all the people that are here, that should be here, would be here. And I'll be starting with the session. I guess there's one more question. One query about the query group. Sure, Umair Khan, बताइए क्या मोहम्मद उमैर आपका क्या इशू आ रहा है? Please guide us regarding certifications so that we can carry the course accordingly. Well, you've got 5 weeks. It's a 5-week course, so you can, complete this task. जो आपको जिस तरह से टास्क असाइन किए जा रहे हैं आप उनको फॉलो करते रहें, कोर्सेज को कंप्लीट करते रहें और उनकी बेसिस के ऊपर आपकी जो है वो ग्रेडिंग की जाएगी. उसकी बेसिस पे आपको सर्टिफिकेशंस भी मिल जाएंगे बेस्ड ऑन योर अटेंडेंस एंड योर पार्टिसिपेशन, योर कंप्लीशन ऑफ टास्क जो आपको असाइन किए जा रहे हैं. जिस तरह से मैंने लास्ट सेशन में कहा था, you had 2 days to work on your SQL for data analysis course. आप उसको कर सकते थे. आपके पास अभी अगला वीक भी है, उसके बाद भी आपके पास टाइम है. 5 वीक्स जब तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो रही. But it is recommended to do things साइड बाय साइड. जिस तरह से आपको मिलती जा रही हैं उनको आप करते जाएंगे तो आपके ऊपर पाइल अप नहीं होगी चीजें, आप साथ के साथ कर सकेंगे उनको प्रॉपर्ली. So I'll be beginning the session now. Let me just share my screen. Are there any other questions before I begin? Please आप share. कहा था कि YouTube वीडियो शेयर करेंगे ग्रुप में, तो उसका कोई लिंक आया नहीं है अभी तक, क्योंकि मेरा लास्ट सेशन मैं पूरा नहीं अटेंड कर सका था, तो उसके लिए पूछना था. Okay, so
The thing is कि last session record नहीं हो सका था unfortunately. This session would however be recorded. The last session was more of a hands-on, introductory hands-on कि आप किस तरह से SQL के अंदर data को query करते हैं, accessing किस तरह से करते हैं. उसके बाद different उनके operations को हमने देखे थे जो SQL के अंदर perform किए जाते हैं. But all these things and more are available in the course that I've shared, SQL for data analysis on Udacity. Okay, thank you. So if you could follow that course, आपके जो है, you wouldn't have to go through the last session. There's no need to, visit through the last session. Okay, so Anjum Wahid is saying, Mohammad Marafan, can you please share the course details that one participant talked about? Anjum Wahid, could you please elaborate on that? आप बता सकते हैं कि कौन सा कोर्स की बात करें आप? जो अभी सीक्वल का आई थिंक सो डिस्कशन हुई थी और कंटेंट डिटेल्स की बात हुई थी कि ये इतना बड़ा लेंथी कोर्स है और हाउ वी कुड बी कवर दिस कोर्स इन ड्यूरिंग दिस शॉर्ट टाइम. तो मैं उस कोर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इनिशियली मिस कर दिया था, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपसे. It's a free course on Udacity. It's known as SQL for data analysis. Let me just type it in as well. Udacity is an online learning platform जिस तरह से आपका Coursera है और इस तरह का there are different platforms. So you could use that to get a more detailed reference on how to use SQL, how to leverage SQL for data analysis. Listen, Silva, I missed the last 30-minute course. Can you please repeat the task you gave in the last sessions? Hassan Server, आज जो हमने बात करनी थी उसी को लेकर चलना था आगे. If you've missed that, I'm sorry. You'll have to make do with today's session. Repetition अगर हम लोग पुराने के काम करते रहे फिर आगे चलना मुश्किल हो जाएगा. We have to cover a lot of topics. There's a lot of course material that needs to be addressed. However, I would be giving a summary and talking about it with you guys, so there's no need to worry that much about it as well. So if there aren't any more questions, let's begin. Last topic में last session के अंदर जो हमने discussions की थी वो बहुत सारी चीजों पे की थी. Arsalan, do you still have a question? No, I'm good, thank you. Okay. So in the last session, we discussed a lot of things, and I've assigned different materials to you to research up, to look it up, to see how things are working on that. I hope you've gone through them. One of them was what is normalization and what role it plays, how to design ERD diagrams, what are one-to-one relationships, many-to-many relationships, cardinalities, things like that. Foreign keys, primary keys, इन सारी चीजों को research करने का कहा था. So I'm assuming that you guys have gone through them. And if you do, if you've done that, let's begin further on. Let me share my screen, and I've got a few announcements to make as well. सबसे पहली तो चीज मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि do mark your attendance. It's given in the link is shared. Afras Saab has shared it in the chat section. And the second thing that I want to point out is that from today onwards, जो Friday के आपके sessions हुआ करेंगे, that would be from 5 to 7, 5 p.m. to 7 p.m. And this is only for Friday. The rest of the sessions in the week, the 2 sessions that we have on Monday and Wednesday would be held on the same timings. Okay, so let me know if you could see my screen.
Can you guys see my screen? Yes. Yes. Okay, so let's start. Zulekha is requesting control. Zulekha, आपको control दिया जाएगा, लेकिन आप जो है अगर बता देंगे बाद में कि what the purpose is. If there's something you want to share, you can share right now. गलती से click हो गया था. I'm not Okay, requesting. no problem. So what I want to know is last session के अंदर मैंने आपसे कहा था कि आपने इन चीजों को देख कर आना है. तो what do you think ERD or entity relationship model in database management systems does for us? हम लोग इनको क्यों use करते हैं? What is the requirement for having these diagrams or relationship models? Anyone? It's basically a visual representation of objects or tables in a database. Visual representation of Tables or objects in a database. absolutely correct. That is what it does. So what just जितनी भी आप design करते हैं, when designing a database model, you have to know what different type of entities are there, what different type of things are there that we need the data about, and how to define relationships between them. वो किस तरह से हम group करते हैं, किस तरह से access करते हैं, किस तरह से relate करते हैं एक दूसरे के साथ. All those things are defined through an ERD diagram or an entity relationship model. So a simple definition for DBMS, a database management system. ये तो सारी बातें हम लोग कर चुके हैं. उमर भाई ये लॉजिकल डिजाइन में आएगा ना कि फिजिकल डिजाइन में. Okay. High level. इसके अंदर सिर्फ हमारे पास एंटिटीज होती हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनके आगे फर्दर रिलेशनशिप्स होते हैं और साथ में उनके एक्शंस हो रहे होते हैं जो कि उनको डिफाइन कर रहा होता है कि किस तरह से वो एंटिटीज के आपस में रिलेशनशिप्स मूव हो रहे होते हैं या डिफाइन हो रहे होते हैं. Okay, this model is used to define the data elements and relationships for a specified system. Okay, I've already mentioned that. It develops a conceptual design for the database. It also develops a very simple and easy to design view of data. जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि it is more of a conceptual thing that we have to know how the entities are oriented or related together. जब आप इसको देखते हैं किसी भी ERD मॉडल को, so you get the idea for how the data is going to flow. उसका डेटा का फ्लो क्या होगा, किस तरह से आएगा, कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी एंट्रीज होंगी, किस तरह से इसके अंदर जो है रिलेशनशिप्स इनकी जो है मेंटेन हो रहे हैं, कौन सी एंट्री रिजेक्ट होगी, किस तरह से उसकी जो है ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर बनेगा पूरे डेटा का जो कि एंटर हो रहा होगा सिस्टम के अंदर किसी भी. In your modeling, the database is portrayed as a diagram called an entity relationship diagram. So I've already talked about it. The model is basically expressed through a diagram ultimately. अब डायग्रामेटिक्स की अगर जब बात करते हैं हम लोग, तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल अभी जिस तरह से आप लोगों को मैं अभी फर्दर स्लाइड्स के अंदर भी शो करूंगा, there are many things that can be, there are many ways actually to show the to model the data. अब UML क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो just write these points down with you. जो चीज आप लोगों को लगती है कि आप लोगों को नहीं आ रही है, फिर that is something new, write them down, Google them later on, or ask me. I could explain them if it's not too lengthy, or you can always contact me later up as well if it's too lengthy. Otherwise, I'll be sharing the details in within the session.
जब मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ कि UML की, तो UML stands for Unified Modeling Language. It defines how the entities are related to each other. That is an approach to ER modeling as well. वो उसकी example भी आपको share करूँगा. But before that, this is a simple example for an entity that is student. And there are multiple attributes for it. जिस तरह से आप देख सकते हैं, there's ID, there's name, address, and age. Attributes और entity जिस तरह से हमने last session में भी discuss किया था कि किस तरह से ये हमें physically हम लोग इसको देख रहे थे, access कर रहे थे using SQL scripts. So what an entity is? Entity can be anything that is a defining part of a database model. Entity के कुछ attributes होते हैं जो कि उसको define कर रहे होते हैं. Or these entities are usually or most of the time saved as, अगर हम लोग इनको देखते हैं database के अंदर, तो इनके अपने tables होते हैं जिसके अंदर इसके अंदर हमारे पास data होता है उन tables के अंदर according to their attributes, columns, and columns attributes interchangeable term है यहाँ पे, because जब भी हम tables की बात करेंगे उनके attributes जो है वो उनके column names होते हैं normally when we in the database genre. So there are different attributes, different columns that make up a table or an entity. अब यहाँ पे आपके पास student का जो है entity है उसके अंदर different उसके attributes हैं. इनके ऊपर action किस तरह से perform होगा, that would be the next step. I would show you guys that as well. But उससे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि ER modeling के अंदर किस टाइप की एंटिटीज होती हैं, कौन-कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं और किस टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं. So let's go over that. So the components of ER diagram, जिस तरह से आपको बताया, what an ER model is composed of. There are entities, attributes, and relationships that define an ER model. Entities can be weak entities or strong entities. Attributes की बात करें तो attributes can be key attributes, composite attributes, multi-valued attributes, derived attributes. There are other types of attributes as well, which I recommend you to search it up, Google it up. देखें आप किस तरह से इनके ऊपर कौन-कौन सी चीजें और भी हो सकती हैं. Relations उनके बीच में किस तरह से entities के बीच में बन रहे होते हैं. There are one-to-one, one-to-many, many-to-one, and many-to-many. रिलेशनशिप्स अभी तक जितने भी मैंने देखे हैं इन टाइप्स के अलावा और ज्यादा नहीं होते. रिलेशनशिप्स यही होते हैं जो होते हैं. अब वो क्यों होते हैं, किस तरह से होते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द अप्रोच फॉर हाउ यू मॉडल अ डेटाबेस स्ट्रक्चर. किस तरह से आप एंटिटीज बनाते हैं, कौन-कौन सी एंटिटीज बनाते हैं, कौन-कौन से एट्रीब्यूट्स बनाते हैं, कौन-कौन से उनके रिलेशनशिप्स डिफाइन करते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन द मॉडलर जो बना रहा होता है, डेटाबेस के डिजाइन बना रहा होता है. Okay, so an entity may be an object, class, person, or place. Like I said before, कि entity कुछ भी हो सकती है. Anything that is necessary for defining a database model is known as an entity. In the ER diagram, an entity can be represented as rectangles. ये आपको show हो रहा है जिस तरह से कि employee works for department. So an employee is an entity जो आपको यहाँ पे एक rhombus figure नजर आ रहा है. That defines कि किस टाइप का रिलेशनशिप है या फिर क्या एक्शन हो रहा है. और how is it related to another entity? Employee and department are entities. उनके बीच का रिलेशनशिप जो बन रहा है that is defined by the rhombus or the tilted square if you call it, works for department. Employee works for department. तो ये तो entity होगी, but what is a weak entity? A weak entity can be something that depends on another entity, जिसकी dependency हो दूसरी entity पे. The weak entity doesn't contain any key attribute of its own. The weak entity is represented by a double rectangle.
अच्छा, आप लोगों को ये बात तो समझ आ गई है कि एंटिटीज क्या होती हैं। आई होप इफ अगर आप लोगों को नहीं आई, कोई एम्बिग्विटी है, तो यू कैन जस्ट टेल मी राइट नाउ। Actually, since I'm presenting the presentation, I would like जब मैं आप लोगों से बात करूं, just open your mics real quickly, respond, and then close your mics, because it's hard for me to look into the chat section again and again. So since I've got no response, I would assume that nobody has any doubt of it now. So weak entities की अगर बात करें तो लास्ट पॉइंट तो प्रीटी क्लियर है कि डबल रेक्टेंगल्स इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ईआरडीज में, लेकिन इसकी जो बात थोड़ी सी आप लोगों को कर सकती है कि व्हाट इज अ वीक एंटिटी, इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू हाउ टू वी डिफाइन अ वीक एंटिटी। तो वीक एंटिटी जो होती है उसको डिफाइन इस तरह से किया जाएगा कि उसका अपना कोई की एट्रीब्यूट नहीं होगा। नाउ व्हाट इज द की एट्रीब्यूट, डज एनीबॉडी नो? जो रिपीट ना कर रहा हो। सॉरी, जो रिपीट ना कर रहा हो और उसमें कोई नल वैल्यू ना हो। यस, दैट इज एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो रिपीट ना कर रहा हो, उसमें नल वैल्यूज ना हो, उसको की एट्रीब्यूट कहा जाता है। अब ये वाले एट्रीब्यूट जिसके अंदर की मतलब के वीक एंटिटी के अंदर अपनी कोई की एट्रीब्यूट नहीं होती, वो डिपेंडेंट होती है किसी और एंटिटी के ऊपर, उसको हम कह देते हैं कि दैट इज अ वीक एंटिटी। आई होप दैट मेक सेंस। अगर यहाँ पे एग्जांपल मैंने जिस तरह से दी हुई है, यू कैन सी कि लोन इज एन एंटिटी एंड इंस्टॉलमेंट is a weak entity since its attributes does not have a key attribute of its own. उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज जा रही हैं वो सारी की सारी लोन के थ्रू जा रही हैं। लोन की कोई आईडी होगी, की एट्रीब्यूट होगा उसके अंदर, जो कि डिफाइन कर रहा है कि कौन सी इंस्टॉलमेंट के कितने लोन्स भरे जा रहे हैं उसके अंदर। उसका रिकॉर्ड अपडेट होता जा रहा है, न्यू रिकॉर्ड उसके अंदर एंटर होते जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। उसका अपना कोई की एट्रीब्यूट नहीं डिफाइन किया हुआ। So this is a simple example for representing a case study for installments and loans demonstrating weak entities. Attributes की बात करें तो मैं आपको already बता चुका हूँ, attributes are components or characteristics that make up an entity. The attribute is used to describe the property of an entity. जिस तरह से अगर आप किसी भी उसकी बात करें एंटिटी की, यहाँ पे एग्जांपल दिया स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट की उसकी प्रॉपर्टी है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी एक यूनिक आईडी होती है, कोई रोल नंबर दिया जाता है किसी भी स्टूडेंट को। स्टूडेंट का अपना डेफिनेटली एक नाम होता है, और आजकल के ज़माने में हर किसी के पास फ़ोन होता है, तो फ़ोन नंबर, एंड एनी स्टूडेंट must have an age. That is pretty obvious. When we talk about key attributes, so the key attribute is used to represent the main characteristic of an entity. It represents a primary key. The key attribute is represented by an oval shape with the text underlined. जब हम ERD बना रहे होते हैं तो इसकी ये key attributes की ये सारी characteristics होती हैं. That is how we you could say identify or separate the key attributes from other attributes for a particular entity. So जिस तरह से अभी मैंने आप लोगों से की एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन पूछी थी, आप लोगों को समझ आ गई होगी। फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड, यू कैन स्टिल लुक इट अप इन द लेटर सेशंस कि प्राइमरी कीज क्या होती हैं, फॉरेन कीज क्या होती हैं। ये हम लोग, मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों से कहा था कि रिसर्च कीजिएगा इसके ऊपर। आई होप दैट यू डन दैट, सो आई एम टेकिंग दैट फॉरवर्ड नाउ। ओके, तो यहाँ पर आईडी जो है स्टूडेंट की, इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो, स्टूडेंट एक एंटिटी आपके पास, उसका नेम है, फोन नंबर है, एज है। लेट्स सपोज के दो स्टूडेंट्स हैं,
उन दो स्टूडेंट्स के नेम एक जैसे हो सकते हैं. We have abundance of people that have the same name in Pakistan. उमर अगर इकट्ठे हो जाए तो अपनी एक nation बना लें मगर. Phone numbers can be same as well, age can be same as well. But to uniquely identify a student, there are unique IDs, roll numbers उनको दिए जाते हैं लाजमी. That distinguishes each and every separate student individually. Composite attributes. Now, what are composite attributes? Composite attributes are a combination of two or more attributes. For example, कि आपका जब आप लिखते हैं, नाम लिखते हैं, तो नाम आपका यूजुअली एक ही लाइन के अंदर लिखा जाता है. But that is not the case when we look at it from a data perspective. We usually split the names if need be, if there is a need to split the name. So यहाँ पे जिस तरह से आप देख सकते हैं, a name is composed of a first name, a middle name, and a last name. यहाँ पर name entity नहीं है, यहाँ पर name एक attribute है. The name is an attribute itself that is made up of different attributes. There's a first name that is an attribute, there's a middle name that is an attribute, and there is a last name that is an attribute. And all these names, the first, the middle, and the last, combine to make the full name. And the full name is an attribute in itself. Now let's have a look at multi-valued attribute. Multi-valued attributes, किस type के attributes होते हैं? Any attribute that have more than one value is referred to as multi-value. जिस तरह से आपको देखें नाम ही self-explanatory है. Multi-value, more than one. These attributes are known as multi-valued attributes. The double oval is used to represent multi-valued attributes. Okay, so let's suppose for those users जिनके पास multiple SIM cards होते हैं, एक फोन के अंदर दो उन्होंने डाले हुए होते हैं, multiple आजकल फोन भी इस तरह के आ रहे हैं कि उनके अंदर dual SIMs होते हैं. So a single person can have more than one phone number, and these phone numbers can be stored to, contact a particular person. And these type of attributes, जिसके अंदर एक से ज़्यादा value हो, उसको हम multi-valued कहते हैं. I hope the concept is clear. अगर आप लोगों को कहीं पे भी ambiguity हो, कोई भी चीज़ समझ ना आए, तो do interrupt me on the spot and we can discuss it. Derived attribute. What is a derived attribute? An attribute that can be derived from other attributes is known as a derived attribute. It can be represented by dashed oval. Okay. So derived attribute को किस तरह से किया जाता है define? I mean कि अगर आप student is an entity, उसका name है, उसका roll number है, उसकी birth date given है. Now what we need to do, there's a need in the model to have a particular attribute that is age. Age किस तरह से हम लोग derive कर सकते हैं इस particular entity की? Student है, तो उसकी definitely हम लोग birth date को देख सकते हैं. Birth date को हम देखेंगे कि क्या birth date है उसकी. उसके अंदर से हम लोग current date को जो है, current date में से उसको birth date को अगर minus कर दें, the amount of time between the birth date and the current date, that is today, we get the exact age. So since it requires an operation and it is dependent or it is derived from another attribute, that is why it is referred to as a derived attribute. Relationships. Okay. It is a complicated thing when we talk about human relationships, but when it comes to DBMS relationships, it's pretty. मैंने उनको पहली स्लाइड्स के अंदर दिखाया था.
But what excuse me, actually your our voice is relationship disconnecting. is used to describe the relation between entities. Sorry? your आपका voice disconnect हो रही है. My voice Sorry, is sir. breaking up. Yeah. Let जी me बिल्कुल, just कभी ठीक हो जाती है, कभी स्क्रैम्बल करना स्टार्ट कर देती है. Okay, good thing you guys pointed out. अगर आप मुझे ये पहले बता देते, it would have been more appropriate. मैं भी इसको सेट कर देता हूँ. Just give me a second, please. Sorry for the, you know. Can you guys hear me now? जी अब ठीक है. Yes, sir. Yes sir. Okay. यार आप लोग चैट सेक्शन के अंदर जो है कमेंट्स कर रहे हैं, तो लाइक आई सेड बिफोर कि मैंने जो है ना इस तरह से आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन in the presentation. I would like, if you've got a question, open up your mics and just say what you want to say rather than commenting in the chat section, because I have to you know, switch between the windows. और उसके लिए मुझे प्रेजेंटेशन को बार बार मिनिमाइज करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, फ्लो टूट जाता है. जी तो यहाँ पर अब आए हुआ है इमाद लोधी. इमाद said weak versus derived attributes. Okay, so there are weak entities and derived attributes. There's a difference. Weak entities की जब बात करते हैं तो वो entities होती हैं. Let me share my screen again. Why isn't it being shared? Is my screen visible to you guys? स्टक है आई थिंक. Is it still stuck? No sir. So- Yeah, it's okay. It's okay now. Can easily see it. Okay. So let me open the slide where we talked about weak entities. So can you guys see the weak entities page right now? Yes. Okay. So weak entities का जिस तरह से मैंने आपको बताया कि any entity that is dependent on another entity, वो weak entity होती है. It does not have a primary key or a key attribute of its own. Are we clear on that now? Weak entities Yes. का आप लोगों को concept मिल गया, लोधी साहब. When we talk about derived attributes, the main difference is an attribute cannot have, you know, an attribute is already a characteristic of an entity. इसकी further attributes की further जो है आगे वो नहीं होती कोई primary attributes जिसे आप कह लो कि वो define कर रहो किसी भी एक attribute को. An attribute can itself be a primary key or a primary value that defines an entity. And derived attributes की जब बात करते हैं तो it is derived from another attribute of an entity. Are we clear on that? कोई इसके अंदर आपका सवाल और है? So let's move on. Okay, a relationship is used to describe the relation between entities. Diamond shape is used to represent the relationship. जिस तरह से आप लोगों को सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिखाई थी कि an employee was an entity and he worked for a department. तो जो वर्क फॉर था आपका एक डायमंड शेप के अंदर एक्सप्रेस कर रहा था कि एंटिटीज के आपस में किस तरह से रिलेशनशिप है. एम्प्लॉय का
और डिपार्टमेंट का आपस में क्या रिलेशनशिप है? An employee worked for a department. That was the relationship. There are two types. One is strong relation and second is weak relation. Strong relationships are represented by a single diamond, where weak relationships represented by a double diamond. Okay, let's have a look. देखते हैं इसके examples देखते हैं हम लोग. ये it's as simple as if you look here, कि employees works for a department. This is a strong relationship. लेकिन अगर इसी को हम लोग एक डिपार्टमेंट से दोबारा से एक और ज्वाइनिंग बना दें रिलेशनशिप, एक न्यू रिलेशनशिप बना दें एम्प्लॉय के साथ का, तो वो हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं डिपार्टमेंट सर्व्स एम्प्लॉइज. इट वुड सीम कि डिपार्टमेंट और एम्प्लॉइज के अंदर एक टू वे रिलेशनशिप बन जाएगा. नॉर्मली वन वे रिलेशनशिप्स बनते हैं, लेकिन just to give you an idea, a weak relationship could be made if we say कि department might not work for an employee, might not serve an employee. That would be a weak relationship between the two entities. So जिस तरह से मैंने आपको बताया types of relationship के बारे में, कि there's one to one, one to many, many to one, and many to many. One to one relationship क्या होता है? When only one instance of an entity is associated with the relationship, then it is known as one-to-one relationship. For example, a female can marry to one male and a male can marry to one female. Sorry for the English, यहाँ पे English की ऐसी तैसी भी पड़ी है. But female और male का जो relationships यहाँ पे describe किया हुआ है, define किया हुआ है, it's a single-oriented relationship. Only a single female can marry a single male, and only a single male can be married to a single female. This is an example for how a one-to-one relationship can be described. Please don't get religious on me and say कि Pakistan का different scene होता है. I'm just talking about generic stuff. So यहाँ पे अब one-to-many की relationship की अगर बात करें हम लोग, when only one instance of the entity on the left and more than one instance of an entity on the right associates with the relationship, then this is known as one-to-many relationship. A scientist can have many inventions, but an invention can only have multiple scientists. अगर देखा जाए तो, there are multiple scientists that can be working on a single invention. That can also be the case. लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं one to many की, for this particular instance, a scientist can invent many inventions, but the invention is done by only that specific scientist. Is that clear, or is there a confusion in how we, define a one-to-many relationship? लेकिन ये एग्जांपल आई थिंक गलत भी हो सकती है, क्योंकि एक इन्वेंशन में एक से ज्यादा भी साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं, जैसे आपने कहा. बिल्कुल इसी तरह से मैंने इसीलिए पहले ये बात कर दी थी कि oftentimes there are many scientists working on a particular invention, but in this particular scenario, just to give you guys an idea for how a one-to-many relationships works, मैंने ये आप लोगों को demonstrate किया है कि there is a single scientist. Let's suppose there are no other scientists deployed. There is a single scientist deployed in a particular institution. और वो scientist जो है वो सारी inventions कर रहा है. In that case, that scientist can have many inventions, but the invention is only done by that particular scientist only. So ये relationships identify करना कि उनके किस तरह से कौन सी relationships बन रहे हैं, किस type के relationships बन रहे हैं, that is very important. You have to know the scenarios, and these are totally scenario based.
हो सकता है कि जिस तरह से अभी डिस्कस किया कि एक से ज्यादा साइंटिस्ट हो, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा मॉडल किस तरह से उसको किया जाएगा, एंटिटी को किस तरह से मॉडल किया जाएगा। Many to one relationship. When more than one instance of the entity on the left and only one instance of an entity on the right associates with the relationship, then it is known as many to one relationship. अब यहाँ पर एग्जांपल आपको सिंपल सी दी हुई है कि a student enrolls in a course. डायमंड शेप आपको बता रहे कि क्या एक्शन है, उनका क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से डिफाइन हो रहा है। A student enrolls in a course. There are many students that can take a single course. So there you have it, the many to one relationship. I hope this is clear as well. अगर किसी को ambiguity है, just ask right now. Okay, moving on. Many to many relationships. When more than one instance of the entity on the left and more than one instance of an entity on the right associates with the relationship, then it is known as many to many relationship. अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एम्प्लॉय इज असाइंड अ प्रोजेक्ट। अब मैनी टू मैनी की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर एटलीस्ट वन की बात आ जाती है कि एक, कम से कम एक या फिर एक से ज्यादा, या फिर इसका ये भी हो सकता है कि जीरो, मिनिमम जीरो इसकी हो सकता है किसी एम्प्लॉय कोई प्रोजेक्ट मिला ही ना हो, ऐसा भी केस हो सकता है। So there are other notations as well that define how this many to many, many to one, or one to one relations are described. उसकी भी आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। But in this particular scenario, to define many to many relationships, it is as simple as this: a single employee can be assigned a single project, or multiple employees can be assigned multiple projects. Now moving on to an example for how an internet sales model might look like if we see its entity relationship diagram. जिस तरह से आप लोग ये देख सकते हैं कि इस मॉडल के अंदर डिफाइन किया हुआ है सारी चीजों को, एक पर्टिकुलर ई कॉमर्स के स्टोर को आप कह लें कि इंटरनेट सेल्स मॉडल ई कॉमर्स का स्टोर हो गया ना आपका, कि जिस तरह से दराज हो गया आपका अलीबाबा हो गया, you can there are many e-commerce platforms that you can use as a reference model, but अगर उनको आप मॉडल करने देखें तो उसका बिल्कुल बेसिक मॉडल जो होगा वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा कि there is a company name, उनको वो कंपनी नेम जो है वो that particular company produces an item, उस आइटम की अपनी कोई नेम होगी, कोई प्राइस होगी, और जो है वो किस तरह से कनेक्टेड है उससे, कंपनी प्रोड्यूसेस आइटम जो है, या आप देख सकते हैं कि कंपनी का रिलेशनशिप जो निकल रहा है वो आपका वन निकल रहा है, और जो यहाँ पे जा रहा है आइटम तक वो आपका जा रहा है देयर इज अ लाइन ऑन इट दैट मीन्स कि एटलीस्ट वन उसके अंदर होगा। अ कंपनी प्रोड्यूसेस एटलीस्ट वन आइटम, और इसी तरह से अगर हम लोग कस्टमर और आइटम का रिलेशनशिप देखें तो अ कस्टमर कैन हैव जीरो और मोर orders for a particular item or many items. But जब ऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पे, इनके आपस में रिलेशनशिप जो बन रहा है कस्टमर का और आइटम का, अ कस्टमर शुड हैव, जो आइटम की साइड से अगर देखा जाए आइटम का ऑर्डर एटलीस्ट वन होगा तो उसका वो कस्टमर और आइटम्स के दरमियान रिलेशनशिप बनेगा। बट इफ अ कस्टमर डज नॉट हैव डजंट ऑर्डर एनीथिंग तो कस्टमर और आइटम के दरमियान कोई रिलेशनशिप ही नहीं बनेगा। So that's how you look at an ERD, or that's how you model an ERD. इसके ऊपर आप फर्दर R&D भी करें, आप देखें इसकी डिफरेंट नोटेशंस किस तरह से होती हैं, किस तरह से इसको बनाया जाता है, what are the best practices to develop a database designed using ERD.
what is the frame of reference जिसको follow करते हुए आप लोग ये ERDs बनाते हैं, इन सारी चीज़ों को आप लोग देखिएगा, रिसर्च कीजिएगा। अब ये तो एक रिप्रेजेंटेशन हो गई ERD की। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग मॉडल की बात करते हैं, डेटा मॉडल की, कॉन्सेप्चुअल मॉडल, हाई लेवल मॉडल, कि किस तरह से आपस में रिलेशनशिप्स इनके बन रहे होते हैं, किस तरह से ये डिफाइन हो रही होती हैं चीजें। So this is one way to do it. Another way is to define the model using a UML diagram, and that looks something like this. The top name जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं boxes के अंदर, the bold one, those are entities, और उसके अंदर within those entities जो आपको नजर आ रहे हैं, those are attributes. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कीज भी आपको बनी हुई नजर आ रही होंगी। तो जो यहाँ पर कीज आपको एंटिटीज के बॉक्स के अंदर नजर आ रही हैं, these entities are basically containing key value, primary key value attributes. इनके relationships किस तरह से वो दूसरी entity के साथ connected है, those are defined through foreign keys relationships, और वो आपको जो है वो नजर आ रहा होगा कि किस तरह से आपस में वो connected है दूसरी entities के साथ। I hope that is pretty obvious and clear to you guys to define a high level conceptual model कि किस तरह से आपस में entities relate कर रही होती हैं आपस में। Hello, can you hear me? Could you please just give me a moment? There's a question. I'll be getting back to you. There's a person on site. He has a question. Let's hear what he has to say. entities में foreign keys और primary keys नहीं होती, तो उसका हम relationship कैसे बनाते हैं? उमर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अदील भाई, आपकी मुझे आवाज आ रही है। अच्छा चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। Okay, so there's a question from what's your name? There's a question from Umair. वो कह रहे हैं कि weak entities के दरमियान और जो होता है कोई उसकी अपनी प्राइमरी की नहीं होती, तो उनकी किस तरह से आपस में जो है हम लोग मॉडलिंग करते हैं, राइट? क्या आपका क्वेश्चन है? The thing is कि देखें, weak entities जो होती हैं, they are dependent on another entity. There is a strong entity and a weak entity, right? आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, उसके अंदर आपकी की वैल्यू एट्रीब्यूट्स आ गए, प्राइमरी कीज आ गई, आपको पता लग गया कौन सी ऐसा यूनिक वैल्यू है जो कि एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिफाइन कर रही है विद इन दैट एंटिटी, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स उसके आ रहे हैं आगे, ठीक है? जो आपकी वीक एंटिटी है उसकी अपनी कोई प्राइमरी की नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो आपकी जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी जिसके थ्रू वो बन रही है, वीक एंटिटी बन रही है, उसकी वीक एंटिटी के अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, लेकिन उसके अंदर रेपिटेटिव आपकी कीज होंगी, और वो कीज जो होंगी आपकी, जो आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे होगे, दोज वुड बी द प्राइमरी की ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंटिटी। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी लोन और इंस्टॉलमेंट की, एक अच्छा, बंदा इसकी मैं एक उसके एग्जांपल अंदर देता हूँ। इंस्टॉलमेंट नहीं भर सकता अपनी, एक इंस्टॉलमेंट में उमर, सारा लोन नहीं भर सकता। सॉरी, इसकी ना मैं इनको एग्जांपल देता हूँ। मुझे बताओ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? अदिल भाई जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पे मैं ऑन साइट के लिए जितने भी आए हुए हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए मैं जरा टीवी के ऊपर जो है वो कर दूं शिफ्ट हाँ, वॉइस। कर। डिवाइस सेटिंग्स, ये दिल भाई वी कैन हियर यू नाउ, यू कैन प्लीज। ओके, परफेक्ट। अच्छा यार, ये जो ना सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है ना डेटाबेस डिजाइन का, और ये ईआरडी जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको समझ आते हो ना, तो आप डेटाबेस को के डिजाइन बनाने को समझ आते हो, और उससे यानी कि उससे जो आपने फायदा लेना है एनालिटिक्स के अंदर, वो बहुत अच्छा ले सकते हो। अच्छा, अब आप बहुत सारे लोग शुरू के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, यार एंटिटीज क्या हैं, इनको आइडेंटिफाई किस तरह करें, यानी ये उस कॉन्सेप्ट को समझने में मुश्किल हो जाती है। अब आपने क्या करना है कि आप कोई भी एक बिजनेस ले लें, ठीक है, एक रनिंग बिजनेस ले लें। मैं इसकी सिंपल एग्जांपल लेता हूँ किसी भी रिटेल की। आप रिटेल के बिजनेस को समझें, उसके अंदर कितने प्लेयर्स हैं, कितनी एंटिटीज हैं,
आपके पास को 5-6 प्लेयर्स नजर आएंगे जो कि जिनके बेस के ऊपर पूरी की पूरी बिजनेस चीज चल रही होती है। क्या होगा? ठीक है, उसके अंदर आप देखेंगे कि एक स्टोर है, आइटम है, ठीक है, सेल हो रही है उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर कुछ रिटर्न्स हो रही हैं, ये वो सारी चीजें। अच्छा, उसके अंदर एक ऑपरेटर है, उससे एक टिल है जिससे सारी की सारी जो है आइटम्स को पंच किया जाता है। अब ये सारी जो है ये एंटिटीज हैं एक बिजनेस वर्ल्ड के अंदर। वो सारी चीजें जिनके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं उनको आप एंटिटीज कह सकते हो। और कोई भी बिजनेस एग्जांपल ले लो, अपने इर्द गिर्द कोई भी बिजनेस एग्जांपल लो, लेकिन वो सारे जो एंटिटीज हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं या प्लेयर्स हैं जो भी हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन कोई ना कोई हो रही है, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब वो इंटरेक्शन 3 किस्म की हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, एक स्टोर के अंदर एक वक्त में एक ट्रांजैक्शन ही हो सकती है ना। गौर करें, मैं किसी एक स्टोर में गया हूँ, फिजिकल लोकेशन है, मैंने वहां पे बैठ के एक ब्रेड खरीदी है, तो मैंने जो ब्रेड खरीदी है, ठीक है, एज ए कस्टमर मैं उस लोकेशन पे था और मैं वहां पे एक ब्रेड खरीदी है और उस स्टोर पे खरीदी है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे खरीदी है। अब ये सारी चीज जिन जिन चीजों को मैं कह रहा हूँ, ये सारे वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके दरमियान एक रिलेशनशिप है। और उन रिलेशनशिप को अगर आप कॉन्सेप्चुअली ड्रॉ करते जाएंगे और उनके दरमियान रिलेशन बनाते जाएंगे, तो रिलेशन 3 किस्म के बनेंगे। या तो उनके अंदर 1-to-1 रिलेशन होगा, या 1-to-many का रिलेशन होगा, या many-to-many का रिलेशन होगा। अब जो आपको कॉन्सेप्ट जो डिस्टर्ब कर रहा है ना, वो जिसके अंदर वीक एंटिटीज की बात आ रही है, वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को रेजोल्यूशन की बात हो रही है। कोई भी दो मैनी टू मैनी रिलेशन जो है ना, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उनको रिजॉल्व किया जाता है जंक्शन टेबल्स के थ्रू। उनके दरमियान वो एक और टेबल बनाया जाता है ताकि उसको जो है ना 1-to-many में कन्वर्ट कर दिया जाए उस जंक्शन टेबल से। ये उमर आपको और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपने एंटिटीज को यूं देखना है कि किसी भी बिजनेस के अंदर यूज होने वाले वो ऑब्जेक्ट जो आपस में कोई रिलेशनशिप बनाते हैं, वो सारी एंटिटीज है और वो उनके दरमियान रिलेशन। इसकी बेस्ट एक्सरसाइज ये है कि आप कोई भी बिजनेस मॉडल पकड़ें, ठीक है, वो आपका लाइब्रेरी सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है, आप एक लाइब्रेरी सिस्टम बना के देखिए क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे आसान काम है, आप रिटेल को देखें, रिटेल क्या हो सकता है, ई कॉम को देख लें। तो इन रिलेशनशिप्स को समझने के लिए जरूरी है कि आप पहले समझें कि एंटिटीज क्या हैं। एंटिटीज क्या हैं? वो सारे ऑब्जेक्ट्स, वो सारे प्लेयर्स जो कि बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके बगैर बिजनेस मुकम्मल नहीं होता। और उनके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और वो आपस में एक रिलेशनशिप रखते हैं, क्योंकि उसकी ही बेस के ऊपर सारा बिजनेस चल रहा है। उनको हमने क्या किया, कॉन्सेप्चुअली जो है ना ड्रॉ कर दिया है कि भाई ये अगर कस्टमर है, ये स्टोर पे आया है, ठीक है, इसने क्या किया है, सेल की एक ट्रांजैक्शन की है, ठीक है, सेल के अंदर क्या थी, प्रोडक्ट्स थी, ठीक है, प्रोडक्ट्स किसी ना किसी कैटेगरी को बिलोंग करती है, तो इसका मतलब है वन कैटेगरी है मैनी प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। एक प्रोडक्ट जो है ना वो एक ही कैटेगरी में रहेगी, ज्यादा कैटेगरी में तो नहीं आ सकती वो। तो आपने यूं इसको सोचना है, और इसको जितना प्रैक्टिस करोगे, आप ड्रॉ करोगे पेपर पे, आपको ये आसानी हो जाएगी। आई होप कि मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए इसके ऊपर। जी उमर, आप चलते रहे। और मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप अपने सारे क्वेश्चंस जो है ना, एक तो ये कि टॉपिक खत्म होने के बाद करें, ठीक है, और दूसरा ये कि कुछ क्वेश्चंस जो है आप लिख के रख लें, एट द एंड ऑफ द सेशन उसको करें। थैंक यू। ले उमर, यू कैन कंटिन्यू, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो। Thank you so much, Dil bhai. Okay, so let me continue with the session. Okay, ERD के लिए तो फिलहाल आप लोगों को मैंने यही बताना है. Now I'm going to move on to another concept जो कि मैंने आप लोगों को जिस तरह से कहा था last time कि आप लोगों ने देख कर आना है. I hope that you guys have gone through it as well, and that is a very important topic that is going to be helpful and used throughout your course and your BI journey as well.
not only in this training program, but throughout the, your BI career. And that is database normalization. हम लोग database किस तरह से normalize करते हैं? What is database normalization? Database normalization यूज क्यों की जाती है? इसकी नीड क्या थी और किस तरह से इसको हम लोग ओवरऑल डेटा को normalize करते हैं? Each and everything will be discussed here. Okay, so let me know if you can see my screen. Yes. Good. The normalization ka, before I dive, right into the course material here, what I want to know is ke just quickly and randomly, I want to know आप लोगों को normalization के बारे में क्या पता है? What do you guys think that normalization is? How to store data in a database? So logical Okay. grouping. Organizing data into like structural forms. कोई structured data हो जाए आपके पास, अगर random data तो आप उसको in form of structure organize कर लें. कोई भी specific structure हो सकता है, either it is form, tables. आई थिंक डेटाबेस में जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं तो कुछ ऐसे तरीके से करें कि वो ख़राब ना हो, लाइक डेटा रिडंडेंसी ना हो, डेटा मतलब जिस तरीके से करें तो वो प्रॉपरली उसे यूटिलाइज बेस्ट तरीके से किया जा सके. तो उसकी वजह से बहुत सारी नॉर्मलाइजेशन की टाइप्स हैं, 1, 2 एंड 3 है, इसी तरह सारे. तो वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को जो कि आगे जाके निकल सकती हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये हम स्टेप्स करते हैं. डेटा की जो डिपेंडेंसी है वो खत्म करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन के थ्रू. ओके, तो जो अभी तक मेरे पास रिस्पॉन्सेज आए हैं, आई गेस उनमें से जो लास्ट 2 रिस्पॉन्सेज थे, दे वर मोस्ट रेलेवेंट टू द कंटेंट. डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन हम लोग इसलिए करते हैं बिकॉज जब हम लोग डेटा, लेट्स सपोज वी हैव अ डेटा फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. अब डेटा तो हमारे पास आ गया है, लेकिन उसको हमने स्टोर किस तरह से करना है? हम लोग अगर डेटा को एज इट इज डंप करते जाएं तो दैट वुडंट मीन एनीथिंग. और जब हम लोग उस डेटा को हम लोग एक्सेस करेंगे तो देयर वुड बी कॉम्प्लेक्सिटीज, सर्टेन कॉम्प्लेक्सिटीज दैट वी विल फेस. हो सकता है डेटा अपडेट हो गया हो, हम लोग उसको एक्सेस करें तो उस तरह से सेव ना हुआ हो कि हमारे पास लेटेस्ट रिकॉर्ड जो है वो आए. हमारे पास हो सकता है पुराने रिकॉर्ड्स आने लग जाए. हो सकता है डेटाबेस को जब हम लोग अपडेट करें, अगर उसको हम लोगों ने प्रॉपर्ली नॉर्मलाइज ना किया हो, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ना सेव किया हो जिसके थ्रू हम लोग इंडिविजुअल उसकी अनॉमलीज को अवॉइड कर सकें, तो अगर हम लोग इंसर्शन करते हैं, कोई अपडेशन करते हैं, तो उसके अंदर हमें अनॉमलीज देखनी, वी कुड possibly face anomalies and errors in that. So to avoid such things, we use normalization. ताकि हम लोग डेटा को प्रॉपर्ली प्रोसेस कर सकें, मेंटेन कर सकें और उसको प्रोसेस कर सकें. तो वैसे तो नॉर्मलाइजेशन की जिस तरह से आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे स्लाइड के ऊपर भी नजर आ रहा होगा कि 6 नॉर्मल फॉर्म तक मैं यहाँ पे इसके अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है. But most business models, they don't go more than up to third normal form. So in this session as well, I'm going to be talking till the third normal form. If you're interested, you could Google it up. आप further इसको देख सकते हैं. It would be a good exposure for you guys to go through that as well. आप लोग देखें, कोई चीज नहीं समझ आती, कोई नई चीज आपको पता लग जाती है. So it would be definitely be beneficial for you guys. तो लेट्स सी कि डेटा हमारे पास किस तरह से आ रहा होगा और किस तरह से हम लोग उसको नॉर्मलाइज करते हैं. Okay, there are further enhancements to the theory of normalization and it is still being developed. There is even 6 normal form, but in any practical scenario, normalization achieves its best shape in third normal form. Okay, so जिस तरह से मैंने आपको already ये बात बता दी है कि normally जो organizations की चलती हैं, not only organizations,
I should probably say business models. जो different business models बने होते हैं उनके अंदर जो normalization data की जा रही होती है usually third normal form तक की जा रही होती है. तो इधर जो key terms आपको पता होनी चाहिए before getting into the normalization stuff, those are column that are referred to as attributes, rows that are referred to as tuples, tables जिनको हम relations कहते हैं, entities, any real world object that makes sense. अब जिस तरह से आपको अदील भाई ने भी एक्सप्लिसिटली बता दिया था कि एंटिटीज किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो आप लोग करेंगे ही करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे. लेकिन something that you need to know when in the database world, when we talk about a table, what we often refer to is as a relation. Table or relation, interchangeable terms हैं. Relationship is another thing, but when we say a relation, it means a table. अब वो टेबल या रिलेशन किस चीज के बारे में होता है, वो नॉर्मली एक एंटिटी के बारे में होता है, और उस एंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि कॉलम्स होते हैं. और जब एक पर्टिकुलर किसी भी एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन किसी रिलेशनशिप के अंदर इनपुट की जाती है, तो द कंप्लीट कॉलम्स ऑल टुगेदर मेक अप अ रो, जिसको हम लोग टुपल भी रेफर करते हैं. तो नॉर्मलाइजेशन की अगर एग्जांपल्स हम लोग देखें यहाँ पे, तो आपके पास नॉर्मली अगर जो यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है उन्होंने उसको देखते हैं पहले. लेट अस लुक एट अ लाइब्रेरी टेबल that maintains all the books they rent out in one single table. एक सिंगल टेबल के अंदर उन्होंने जितना भी डेटा उन्होंने सेव किया हुआ है वो आपको इस तरह से नजर आएगा. सैल्यूटेशन का एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर उन्होंने डिफाइन किया हुआ है जेंडर को कि मिस्टर हैं या मिसेस हैं, फुल नेम डिफाइन किया हुआ है, एड्रेस डिफाइन किया हुआ है, बुक्स इशू डिफाइन की हुई है. तो दिस इज व्हाट denormalized table look like. बिल्कुल इसके अंदर कोई किसी किस्म की नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई. लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सैल्यूटेशन के अंदर डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं. नेम्स के अंदर तो डेफिनेटली डिफरेंट वैल्यूज होंगी, एड्रेसेस में भी डिफरेंट होंगी. लेकिन जो चीज़ आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने आप लोग जिसके ऊपर अभी फिलहाल ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने वाली है आप लोगों के लिए, वो ये है कि आप ये देखेंगे कि एक ही रो के अंदर, दिस इज अ सिंगल रो, दिस ओरिएंटेशन कि मिस्टर जॉन मिल जो कि इस एड्रेस पे रहते हैं, उन्होंने ये वाली सारी बुक्स इशू करवाई थी. देयर आर मोर देन वन वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट बुक्स इशू. तो ये आपका बुक्स इशू जो है ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है. जिस तरह से हम लोगों ने अभी आपको ERD के अंदर हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि ऐसा एक एंटिटी जिसके एट्रीब्यूट के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू होगी उसको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहेंगे. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. एक बुक है 10x रूल, एक बुक है टाइटैनिक, एक है लीडर ईट लास्ट. So these are different values that are in a single attribute. तो अगर हम लोग इसको as it is डेटा को रख देते हैं, इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो डेफिनेटली अपडेशन में, डिलीशन में हमें बहुत सारे इश्यूज फेस हो सकते हैं, इंसर्शन में भी. तो हाउ टू अवॉइड दैट, लेट्स सी. हम लोग जाते हैं सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास होता क्या है कि each stable cell should contain a single or atomic value. What this means is कि आपके पास जितनी भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं उनको आप स्प्लिट कर देंगे. आपके पास कोई भी ऐसा कॉलम नहीं होना चाहिए जिसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यू हो फॉर एनी एट्रीब्यूट. Every record in the table must be unique. This is also important. कि आपके पास जितने भी एट्रीब्यूट्स, जितनी भी रिकॉर्ड्स हों, जितने भी टुपल्स हों, वो यूनिक होने चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशंस मीट हो जाती हैं तो आपका जो है टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में चला जाएगा. लेट्स सी अगर हम लोग डेटा को किस तरह से चेंज कर सकते हैं to convert it from a denormalized table
to a first normal form table. So this is an example for how we turned a denormalized table into a normalized one. जिस तरह से आप देख सकते हैं कि salutation Mr. John Mill, address, books issued. It was a multi-valued attribute. We split the data up. हमने उसको single valued attribute बना दिया, atomic values डाल दी इसमें. अब ये रो इसका ये tuple जो है इसका ये यूनिक है. इस तरह का आपको बार-बार tuples नजर नहीं आ रहे होंगे, सिर्फ एक ही tuple नजर आ रहा है. इसी तरह से जितने भी उसकी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स थी उनको हमने स्प्लिट करके डिफरेंट रोज में स्प्लिट कर दिया है, रादर देन हैविंग द सेम वैल्यूज इन अ सिंगल पर्टिकुलर कॉलम और इन अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. हमने उस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को स्प्लिट करके एटॉमिक वैल्यूज बना दिया, यहाँ पे सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट बना दिया. दिस इज हाउ वी टर्न our denormalized table into the first normal form. और अब हम लोग बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को मैं एक ये चीज बता दूं. नॉर्मलाइजेशन का सिंपल सा एक रूल है. टू प्रोसीड फर्दर इन द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कि जब आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे जाते हैं, सेकंड पे जाते हैं या थर्ड पे जाते हैं, so उसकी कंडीशन होती है कि बिफोर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म ऑल द कंडीशंस फॉर अ पर्टिकुलर नॉर्मलाइजेशन शुड बी मेट. फॉर एग्जांपल आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे जाते हैं अगर, तो उसके लिए लाजमी है कि आपका डेटा ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बाद होने के बाद आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जा सकते हैं. यू कैन नॉट स्किप अ स्टेज इन बिटवीन फॉर नॉर्मलाइजेशन. अगर आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हैं, इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू बी फॉर द डेटा टू बी इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं जा सकते. Okay, so let's move on and let's see कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं. Let's discuss about the data a bit. Key non-key columns को discuss करें यहाँ पे. Any column or group of columns in a table which can uniquely identified row is known as a key column. तो जो key columns की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, can you guys still hear me? Yes. Okay. So could you just give me a moment? Actually, the light just went out at the. I'm just looking in my PC. Okay. So I was talking about key and non-key columns. Any column or a group of columns in a table which can uniquely identify each row is known as a key column. अब यहाँ पर मैंने अभी प्राइमरी की बात नहीं की, मैंने सिर्फ इतनी सी बात की है कि कोई भी ऐसी वैल्यू, कोई भी ऐसा कॉलम जो कि पूरी की पूरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, that can be considered a key column. There is another name for it that is also known as a candidate key. It is a potential key that can be used as a primary key. There are different types of keys for a particular table. आप लोग ये भी रिसर्च कीजिएगा कौन कौन सी है. I hope that you've already done that, but just in case if you haven't or you are confused or you don't have an idea beforehand this session, so I would recommend you guys to go through the different type of keys in a particular table in database management systems. ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि कौन कौन सी कीज होती है, उनका पर्पस क्या होता है, किस तरह से उनको यूटिलाइज किया जाता है. And we can discuss that in the next session. Okay, coming back to the topic. These are some columns which will always remain unique to every record inside the table. Phone number unique रहेगा, email ID unique रहेगी, student roll number unique रहेगा, employee ID unique रहेगी. लेकिन अगर यहाँ पर नेम की बात करें, नेम यूनिक नहीं हो सकता, इसलिए हमने नेम को की कॉलम के अंदर उसको कंसिडर ही नहीं किया. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो सैल्यूटेशन थी, जिस तरह से पुराने उसके अंदर थी हमारे पास टेबल के अंदर मिस्टर एंड मिसेस, तो वो भी नहीं हो सकती बिकॉज दे डू नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो, अ कंप्लीट रो.
each and every row should be uniquely identifiable. Such columns are known as key columns inside the table. Any column apart from key column is known as non-key column. Okay, so a primary key. What is a primary key? A primary key is a single column value which uniquely identifies each record in a table. In relational database management systems, primary key must satisfy these following conditions. Okay, primary key must be unique. Primary key cannot be null. Every record will have primary key value. ये तीन conditions meet होंगी तो एक की को primary key कहा जा सकेगा वरना उसको primary key नहीं कहा जा सकेगा. Are we clear on that? Yes. Okay. So just to be clear, यहाँ पर आप हमको मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि just to elaborate a little bit on that, कि primary keys को null क्यों नहीं हो सकती? Let's suppose कि आप जब हम लोग बात करते हैं डेटा को एक्सेस करने की, when it comes to accessing data, तो जब अगर आपके पास कोई वैल्यू है ही नहीं उसके अंदर डेटा के अंदर, so how would you identify it? There should be some mechanism through which data should be able to आप लोगों के साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? No. Okay, let me share my screen again. जो अभी तक मैं बात कर रहा था, I was sharing a presentation. आप लोगों को वो presentation नजर आ रही थी पहले? Yes. Okay. So I hope my screen is visible again, right? Yes. Okay. So primary key cannot be null. अगर उसके अंदर null values होंगी primary keys के अंदर, तो how would you access the data? How would you locate a particular person or a particular entity value for that particular relation? So primary key cannot be null. और वो unique होनी चाहिए. Let's suppose अगर unique नहीं है, तो उसका मसला ये होगा कि आप अगर किसी एक particular वैल्यू को कर रहे होंगे, क्यूरी कर रहे होंगे, आपके पास मल्टीपल वैल्यूज आ रही होंगी. Let's suppose let's take an example of this particular scenario. यहाँ पे आपके पास अगर आप इसको प्राइमरी की अलॉट करें तो जॉन मिल है, मानी शर्मा है, फ्रांसिस फर्नांडो है. अगर आप जॉन मिल को भी सेम आईडी दे दें, मानी शर्मा को भी सेम आईडी दे दें, फ्रांसिस फर्नांडो को एक दूसरी आईडी दे दें, तो आप एक्सेस जब करना चाहेंगे डेटा जॉन मिल का, आपके पास मानी शर्मा का डेटा भी आ रहा होगा, जॉन मिल का भी आ रहा होगा. So that wouldn't make sense. A primary key should always be unique, ताकि वो unique person को और a unique object को, unique entity के किसी भी एक value को access कर रही हो. What is a composite key? कभी कभार इस तरह से हो जाता है कि डेटा के अंदर हमारे पास एक यूनिक वैल्यू डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है. There is no particular hard and fast rule to define a unique value कि किस तरह से उसको बनाया जाए. कुछ लोग incremental approaches भी ले लेते हैं, कुछ के like to assign simple IDs and integer values like 1, 2, 3, 4 and onwards. But there are instances जब आपको जो है इस तरह से आपका काम नहीं बन रहा होता. There you have to make up composite keys by joining 2 or more keys together. It's a combination of 2 or more keys to uniquely identify a particular record. I hope you guys are following me on that. आपको मैं example देता हूँ कि अगर हम लोग बात करें, most of you guys must have your ID cards with you, CNIC numbers, right? तो आपके CNIC numbers को अगर हम लोग देखा जाए, तो it is a very long number. To maintain such a record, normally इसको आप किस तरह से efficiently save कर सकते हो कि आप
इसको एसोसिएट कर सकते हो यूनिक वैल्यूज के साथ। आप इसको ABC, आगे आपके जो यूनिक आईडी, आपके जो CNIC के जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं उनको कंबाइन कर दो। That would be used, that can be used as a particular composite key. That is a simple example that can be used. अब ABC की जब सीरीज खत्म हो जाएंगी, आपके पास कंप्लीट हो जाएंगे नंबर्स, आपने पर्टिकुलर डिफाइन की होगी रेंज नंबर्स की कि ABC के अंदर लेट्स सपोज 100 नंबर्स आ सकते हैं ABC सीरीज में, तो आप ABD पे शिफ्ट हो जाएंगे, फिर ABE पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो there is a particular way that you define composite keys. There are rules that you define. There are particular methods that you set to define your composite keys. किस तरह से आप उनको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, किन वैल्यूज के ऊपर जो है डेटा को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब इधर इन्होंने बताया हुआ कि नेम और एड्रेस के कॉम्बिनेशन पे आप जो है वो बना सकते हैं कॉम्पोजिट की। आप यहाँ पे जो है वो बना सकते हैं फर्स्ट नेम प्लस डेट ऑफ बर्थ प्लस फादर नेम। तो ये आई होप आपको इसके बारे में पता लग गया होगा व्हाट अ कॉम्पोजिट की इज एंड हाउ टू डिफाइन अ कॉम्पोजिट की। अब हम चलते हैं फर्दर ऑन। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, जिस तरह से मैंने आपसे पहले कहा था कि टू कम into the second normal form, the data should be in the first normal form first. तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि table must be in first normal form, और second condition उसने ये दी हुई है कि every non-key attribute must be fully dependent on key attributes. Now when we say कि every non-key attribute must be fully dependent on key attributes, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? Let's have a look at the table that we had, turned from denormalized form to first normal form. उसको देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ला सकते हैं। When you see this table, it was originally like this. ये बिल्कुल denormalized फॉर्म थी, इसको हमने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को खत्म कर दिया, हर रो को यूनिक कर दिया, तो हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आ गई टेबल की। अब इसके ऊपर हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ले जाने के लिए जो हमारे पास कंडीशन थी वो ये थी कि every non-key attribute must be fully dependent on key attributes. अगर आप इस टेबल को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर इसके अंदर कोई अभी की वैल्यू डिफाइन नहीं हुई हुई। There it should have a primary key or a unique key that identifies each and every single one of the records available in the data set. तो इसको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में ले जाने के लिए सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि वी हैव टू असाइन इट यूनिक कीज, प्राइमरी कीज इसको असाइन करनी पड़ेंगी, ऐसी वैल्यूज जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हो। लेकिन देन अगेन अगर बात की जाए डेटा की, तो इसको यूनिक कीज हम लोग किस तरह से असाइन करें कि डेटा हमारा एफिशिएंटली थ्रू आउट पॉपुलेट हो डेटाबेस मॉडल के अंदर। लेट्स सपोज कि अगर डेटा को हम लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एज इट इज सेव कर देते हैं और हमने आगे जाके कभी इसके अंदर कोई चेंजेस करने हो, फॉर एग्जांपल चेंज किस तरह के, फुल नेम जो है यहाँ पर मेंशन्ड है एक पर्टिकुलर पर्सन का, किसी भी बंदे का, जॉन मिल के अगर हम लोग दे लें कंसिडरेशन में एग्जांपल, तो जॉन मिल का हो सकता है आगे जाके नाम चेंज हो जाए, जॉन मिल्टन हो जाए। तो वी विल हैव टू मेक चेंजेस थ्रू आउट द डेटा। हमें हर रिकॉर्ड को देखना पड़ेगा कि जॉन मिल किस जगह पर आ रहा है, उस जगह पे जाके उसकी चेंजेस करनी पड़ेंगी। इट वुड टेक अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग, इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आपके कंप्यूटर रिसोर्सेज भी लगेंगे, क्योंकि आप कोई भी आप कमांड देते हैं कंप्यूटर को, आपके कमांड्स आते हैं प्रोसेसिंग यूनिट पे, प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर उसको कुछ ना कोई ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं और फिर आपको उसका रिजल्ट मिल रहा होता है, एंड दैट टेक्स टाइम। एंड एज वेल एज इस सारे प्रोसेस के अंदर आपका जो है टाइम तो लग ही रहा होता है, साथ के साथ आपकी एग्जीक्यूशन जो हो रही होती है वो भी अफेक्ट हो रही होती है, किस तरह जो है आपके पास एक तो टाइम कर ले आ रहा है, कितना स्पेस की कंजम्पशन हो रही है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। So taking these things into consideration,
to avoid time lag in getting data, to getting quicker results, faster results. हम लोग डेटा को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं? Let's see. सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में अगर इसको ब्रेक करें, किस तरह से कॉलम्स को हम लोग कर सकते हैं? Membership ID has a salutation, name and address. Membership ID has books issued on their name. Okay. यहाँ पर अगर देखें तो salutation एक ऐसी चीज है जो कि throughout repeat हो रही है. It could be either Mr. or it could either be Mrs. तो now we know कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे salutation को change करना हो आगे जाके कभी, तो हम लोग इसको एक यूनिक अगर की दे दें कि उस सैल्यूटेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर ले, तो हमारे पास एक ये छोटा सा टेबल बन जाएगा. उसके बाद फर्दर अगर इसको देखा जाए कि हम लोग आगे फर्दर जाके फिर मिस्टर के अंदर अगर इसको यूनिक की दे देते हैं, लेट्स सपोज इसको हम लोग यूनिक की 1 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा मिस्टर को, यूनिक की 2 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा मिसेस को, और यहाँ पर सैल्यूटेशन की जगह हम लोग 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 जो भी उसकी वैल्यूज आ रही हैं वो पॉपुलेट कर देते हैं. आगे जाके हमने कभी भी चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो न्यू टेबल होगा जो हमारे पास डिफाइन कर रहा होगा कि किस तरह से मैप हुआ हुआ है यहाँ पे सैल्यूटेशन, वी कुड जस्ट ऑल्टर द डेटा इन दैट, और यहाँ पर इनके ऊपर हम लोग ज्वाइंस कर सकेंगे इन टेबल को बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप्स, बेस्ड ऑन देयर यूनिक कीज जो यहाँ पे मेंशन होगी. इससे हमारे पास डेटा के अंदर चेंजेस मिनिमल हो जाएंगे. सिर्फ एक टेबल में चेंजेस होंगे जिसके अंदर मिस्टर और मिसेस डिफाइंड होगा और उनकी यूनिक कीज एसोसिएटेड होंगी. यहाँ पर इस वाले टेबल में, इस पर्टिकुलर टेबल में जो आपको पूरा बड़ा टेबल नजर आ रहा है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ चेंज होगी ही नहीं. सिर्फ और सिर्फ सैल्यूटेशन के अंदर आपका यूनिक कीज आ जाएंगी, वो वाली यूनिक कीज आ जाएंगी जो आपने दूसरे टेबल के अंदर डिफाइन की होंगी कि मिस्टर और मिसेस को आपने यूनिक की दी थी. यहाँ पर जिस जगह भी मिस्टर लिखा होगा वहां पर आपके पास 1 आ जाएगा, मिसेस लिखा होगा तो 2 आ जाएगा. नाउ लेट्स सी दिस थिंग इन एक्शन. ओके अभी इसने वो काम नहीं किया, हो सकता है आगे जाके वो काम कर दे, लेकिन वो यहाँ पर जो इसने काम किया, लेट्स सी उसने यहाँ पर क्या काम किया. उसने यहाँ पे किया हुआ है कि जो नॉन की जो उसने डिपेंडेंट वैल्यूज थी उनको सिर्फ जो है वो कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया. किस तरह से ब्रेक डाउन किया है, वो कह रहा है कि जो हमारा बुक्स में टेबल था डज नॉट हैव एनी प्राइमरी की. In such case, we will have to introduce a new key column like membership ID. उसने unique key उसको primary key एक assign कर दी खुद से. To make books main table into second normal form, we need to see how columns are closely related. Membership ID has a salutation, name and address. Membership ID has books issued on their name. अगर यहाँ पर देखा जाए मेंबरशिप आईडी का वो आपने सिंपली आपने बना दिया. देखें आपके पास डेटा पहले रिपीट हो रहा था, जितनी भी बुक्स इशूड हुई थी, जितने भी लोगों ने बुक्स ली थी, उनका डेटा कितना ज्यादा रिपीट हो रहा था, रिडंडेंसी बहुत ज्यादा थी डेटा के अंदर. अब आपके पास 2 टेबल्स हैं जो कि डिफाइन कर रहा है कि कौन कौन सी बुक्स हैं और कौन कौन सी मेंबरशिप आईडी थी, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ गई आपकी फॉर द कस्टमर और द पर्सन हु बोर्ड द बुक्स. वो सारी जो है उसकी इंफॉर्मेशन पर्सन की अलग हो गई. अब यहाँ पे यूनिक पर्सन्स आप देख सकते हैं कि जॉन मिल है, मानी शर्मा है, फ्रांसिस फर्नांडो है. आपको पुराने अनलाइक द प्रीवियस टेबल यू डोंट सी ईच एंड एवरी बुक इशूड टू अ पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन. उसके अंदर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा काम. यहाँ पर सिर्फ मेंबरशिप आईडी है जो कि यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि कौन से बंदे ने कौन सी बुक ली थी, किस किस को इशू हुई थी. एक दफा आप इस टेबल को देखें गौर से और फिर लेट्स कंपेयर इट विद द प्रीवियस टेबल. यहाँ पे देखें जॉन मिल, जॉन मिल, जॉन मिल, मिस्टर मिस्टर मिस्टर, एड्रेस, ये तीनों चीजें आपकी रिपीट हो रही हैं बार बार. डेटा की रिडंडेंसी है, डेटा खामा स्पेस ले रहा है, इसको एक्सेस करने में भी देर लगेगी. बट व्हेन द डेटा इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, आप सिंपली एक दफा करेंगे आपको पता लग जाएगा इसकी यूनिक आईडी क्या है जॉन मिल की, और इसने कौन कौन सी बुक्स निकलवाई थी वो भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं मेंबरशिप आईडी के थ्रू, जिस तरह से यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है मॉडल. आई होप दिस इज क्लियर.
अगर आप लोगों को कोई ambiguity है तो please do share right now. We can talk about it. सर इसमें एक क्वेश्चन है कि इसके ये जो हम लोगों ने ये प्रोसेस किया है इसके थ्रू हमारा एक टेबल ऐड ऑन हो गया तो हमारा प्रोसेस तो लेंथी हो जाता है इसमें। इसका देखें आपका process in designing the database, how the data is going to be stored, that requires a bit of analysis. उसके अंदर definitely आपने किया है, लेकिन आप इसको ये देखें कि डिजाइन इसका जो है एक दफा करना होगा आपने, या फिर इतना फ्रीक्वेंटली बार बार इसके डिजाइन को ऑल्टर नहीं करना होगा जितना फ्रीक्वेंट आपके पास डेटा आ रहा होगा, क्योंकि डेटा आपके पास नॉर्मली बहुत वास्ट उसके अंदर आ रहा होता है, क्वांटिटी में आ रहा होता है। डेटा को बजाय इसके कि आप उसके नॉर्मलाइज किए बगैर स्टोर करें और आप इंसर्शन अनोमलीज, डिलीशन अनोमलीज, अपडेशन अनोमलीज, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि आप कोई भी चीज को, किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहेंगे तो आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेगा, बहुत सारी चीजों को वो अपडेट करेगा। यहाँ पे तो आपके पास सिंपल एक लिमिटेड सा डेटा मैंने आपको दिखाया है कि 3 रिकॉर्ड्स जॉन मिल के थे, 3 रिकॉर्ड्स मानी शर्मा के थे, 3 रिकॉर्ड्स फ्रांसिस फर्नांडो के थे। बट this is not how usually the data is in really big quantity. बहुत सारे records होते हैं, बहुत सारी उसकी आ रही होती एक और बात कि डाटा तो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, मतलब उसका बल्क में होगा, तो उसको जब हम लोग ये मेंबरशिप आईडी असाइन करेंगे तो वो तो हमारे लिए इस डाटा में तो पॉसिबल है हमारे पास, लेकिन वो जब डाटा ज़्यादा हो जाएगा तो वो तो हम एनालिसिस करने में इतना टाइम लग जाएगा, तो उसको किस तरह से इसको असाइन करेंगे मेंबरशिप आईडीज। आप अगर इसी एग्जांपल को देख लेते हैं तो ये आपको आपकी जो ये वाली बात है that would answer itself कि किस तरह से इसको करेंगे। आपने सिंपल काम क्या किए, आपके लेट्स सपोज जॉन मिल के 5000 रिकॉर्ड्स हैं, उसने 5000 डिफरेंट बुक्स निकलवाई थी, या हो सकता है बीच में कुछ ऐसी बुक्स भी थी जो उसने मल्टीपल टाइम्स निकलवाई थी। बजाय इसके कि हम हर दफा ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन डालें कि मिस्टर जॉन, मिस्टर उसकी सैल्यूटेशन भी लिखें, फुल नेम भी लिखें, एड्रेस भी लिखें, हमने सिर्फ एक छोटा सा टेबल डिफाइन किया जिसकी एक यूनिक आईडी आ गई, मेंबरशिप आईडी, जो कि डिफाइन करिए एक पर्टिकुलर पर्सन को। हमने सिर्फ एक दफा ये डिफाइन कर दिया। अब हमें इस डाटा को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी, हमें पता लग गया कि इसकी यूनिक आईडी ये है, मेंबरशिप आईडी जॉन मिल की। बाकी का डेटा जितना भी है, कौन कौन सी बुक्स इशूड हुई थी उसको, जॉन मिल को, वी कुड जस्ट लुक इट अप इन द सेकंड टेबल। उसके अगेंस्ट हमारे पास मेंबरशिप आईडी आ मेरा क्वेश्चन भी यही है कि जब बुक्स ज्यादा इशू हुई हैं अगर जॉन मिल को, तो लेट्स सपोज अगर 50 बुक्स इशू हुई हैं तो हम लोगों को तो उसको देखना पड़ेगा, एक एक चीज को देखना पड़ेगा कि ये मेंबरशिप तो आईडी तो साइन होगी, वो तो हमारा क्लियर हो गया, लेकिन वो एक एक बुक के अगेंस्ट हम लोग इधर डाटा उसको मेंबरशिप आईडी असाइन करेंगे उस बुक को। मेंबरशिप आईडी बिल्कुल, आपके जो रिकॉर्ड्स एंट्री हो रही होगी, आपके पास डाटा जाहिर सी बात है आ रहा है तो उसकी एंट्री तो होगी। अब आप यहाँ पे देखें ना, आपके पास यहाँ पे एफिशिएंट वे में आपके पास डेटा एंट्री होगी, यहाँ पे इंसर्शन जो डेटा की होगी। आपको यहाँ पे हर दफा जो है सारे के सारे रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है आपके पास 50 बुक्स हैं और एक बंदा उन 50 बुक्स को एक्सेस कर रहा है, उसका डेटा तो आपके पास आएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप उसका डाटा ही नहीं लाएंगे अगर बहुत ज्यादा एंट्री होगी। इसके लिए फिर कोडिंग भी तो बहुत लंबा कोड चाहिए होगा हमें। यार कैसा लंबा कोड चाहिए होगा? आप यहाँ पे बुक्स इशूड के अगेंस्ट जो मेंबरशिप आईडी दे रहे हो, ठीक है। आप अभी फिलहाल मैं ये बात नहीं कर रहा कि हर बुक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए भी फर्दर एक कोड डिफाइन कर रहे हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एक मेंबरशिप आईडी डिफाइन की हुई है जो कि यूनिकली एक बंदे को आइडेंटिफाई कर रही है, और फिर यूनिक बुक्स ऑलरेडी उसका नेम जो है वो बुक का यूनिक है, उसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ पे डाटा निकाल रहे हैं। इफ दैट वर द केस कि एक बुक के मल्टीपल नाम, एक ऐसी बुक्स हैं कुछ जिनके नाम एक जैसे हैं, देन वी कुड यूज another टेबल जिसके अंदर डिफाइन कर देते हैं बुक्स की आईडीज को, फिर हम लोग उसको जो है रिलेट कर देते हैं मेंबरशिप आईडी के साथ। ओके परफेक्ट। उससे हमें पता लग जाता है कि किस तरह से हम लोग उसको बुक्स को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दैट? यस। अगर एम्बिग्विटी है तो बता दें, वी कैन गो थ्रू ओवर द कॉन्सेप्ट अगेन। नहीं सब क्लियर है, थैंक यू सो मच। Okay, we have a question on site as well. Okay, so the question is cleared. Are there any other questions?
जी और भाई मेरी ना एक दो क्वेश्चन है। पहला ये है कि जो एड्रेस है ये मल्टी वैल्यूड नहीं है, क्योंकि स्ट्रीट नंबर 4 के अंदर एक से ज़्यादा हाउसेस भी हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कंपोजिट की के अंदर दो नॉन की भी मिलके कंपोजिट बना सकती हैं कि नहीं। और तीसरा ये है कि लाइक इस नॉर्मलाइजेशन का पर्पस ये है कि इंसर्शन अपडेट एंड डिलीशन के अंदर एनॉमलीज ना हो। इन अपडेट सपोज देख लें तो उसमें होता है कि सपोज कहीं पे आप अपडेट कर रहे हो तो कहीं पे आप मिस ना कर जाओ, तो अगर आप मिस कर गए तो अपडेट प्रॉपर्ली नहीं होगा। अब जब हम डीनॉर्मलाइज करते हैं 1, 2 एंड 3 तो इतने ज़्यादा टेबल बन जाते हैं, तो वहाँ पे तो हमें ज़्यादा केयरफुली डेटा अपडेट नहीं करना पड़ेगा कि कहीं पे वहाँ पे लाइक एक जगह पे अगर हम कह रहे हैं कि मिस हो गया तो काम खराब हो जाएगा। जब हमने 20 और टेबल उससे रिड्यूस कर लिए तो वहाँ पे तो भी ज़्यादा चांसेस हैं कि कहीं पे हम अपडेट करना गलती हो जाए। तो ये 3 है क्वेश्चन मेरे। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको बिल्कुल इसका जो है ना आंसर भी आपको जिस तरह से प्रोग्रेस करते जाएंगे ना, अभी आप खुद ही आपका जो भी आपने सवाल किए हैं वो सारे के सारे आपके क्लियर होते जाएंगे। जो लास्ट पर्टिकुलर आपने सवाल किया वो तो आपका डेफिनेटली आगे उसको मैं किस तरह से एड्रेस करूंगा वो भी आप देखेंगे। बट बिफोर दैट आपने जो 2 सवाल किए थे, सबसे पहले आपका सवाल मेरे जहन से निकल गया। दूसरा सवाल मेरे जो जहन में आ रहा है, आपने ये कहा था कि जो है कंपोजिट की composite keys, दो नॉन yes, की वजह से बन सकती है। यार इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर अप्रोच कि आपके पास कोई ऐसी यूनिकली देखो कॉम्पोजिट कीज का पर्पस ये है बेसिकली कि टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ कंप्लीट रो इन अ टेबल, ठीक है ना। तो वो ज्यादातर नॉर्मली जो होती हैं आपकी, वो चाहे नॉन की हो चाहे की हो, वो आप किस तरह से बनाते हो। यू वुडंट बी नीडिंग अ कॉम्पोजिट की इफ यू ऑलरेडी हैव अ की वैल्यू एट्रीब्यूट। सही अगर है आपने फिर भी आपने नॉन की वैल्यूज को आप कंबाइन करके या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ की और नॉन की आप बना सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर अप्रोच। सही है, समझ आ गए। और आपका एड्रेस फर्स्ट सवाल क्या था? एड्रेस वाला एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड है कि नहीं अभी इस ओके, हिसाब से। आप मुझे ये बताएं कि आपका पर्टिकुलर एड्रेस जो है उसके अंदर जाहिर सी बात है आपका हाउस नंबर आता है, आपका स्ट्रीट नंबर आता है और आपकी जो है फिर सिटी आ जाती है, फिर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे ही है। बिल्कुल। जब हम एड्रेस की बात कर रहे हैं, कंप्लीट एड्रेस की, तो डू यू थिंक कि इसको वुड इट मेक सेंस टू स्प्लिट द एड्रेस फर्दर ऑन कि हम लोग इसका हाउस नंबर अलग से डिफाइन करें, इसका हम लोग वो अलग से डिफाइन करें। ये मल्टी वैल्यू तब होगा ना जब हम लोग इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर एनालिसिस कर रहे होते हैं। Got it. What this scenario is representing, it's what books were issued for what particular people. यहाँ पर फोकस बुक्स के ऊपर है कि कौन कौन से बंदे ने कौन कौन सी बुक्स को एक्सेस किया। You could have the address in separate columns as well. आप इसको डेफिनेटली आप इसको डिफरेंट कॉलम्स में भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पर उसकी नीड नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द नीड आप कॉलम्स को डिफाइन करते हो, मॉडल को इसका टेबल्स को रिलेशंस को मॉडल करते हो कि कौन कौन सी इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। दैट कुड बी यूज्ड फॉर एनालिसिस। अगर तो आप यहाँ पे फर्दर लेट्स सपोज के OLTP के अंदर आपने एड्रेस को इस तरह से रख दिया है, राइट। इन द नेक्स्ट फेज जब आप डेटा को एनालिसिस करने के लिए लेके जा रहे होगे OLAP मॉडल के अंदर, तब आप इसको इस तरह से करोगे कि आप डाटा को फर्दर स्प्लिट कर दोगे कि आपने ये निकालना होगा लेट्स सपोज एनालिसिस के एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर से कौन कौन से आ रहे होंगे लोग, या फिर एक पर्टिकुलर रीजन में कितने लोगों ने बुक्स बोरो की हैं। तो वो OLAP वाली साइड पे चली जाएगी बात। अभी के लिए आपके लिए जो है आई वुड रिकमेंड जस्ट स्टिकिंग टू दिस थिंग कि आपको व्हाट यू नीड टू नो इज कि डेटा को किस तरह से स्टोर करना है और किस तरह से स्टोर जो है कब करना है, कौन से मॉडल के अंदर करना है, डेटा को किस तरह से द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग द डेटा इन द स्टेट द वे यू हैव राइट नाउ। दैट इज द मेन क्वेश्चन।
I hope that I've answered your question. जी clear. Okay, are there any other questions or we can move forward? So I'm assuming there are no more questions, so I'll be moving forward. If you see the above tables, we have membership ID in both tables, but in the membership details table, it is a primary key column, and in books issued table, it is a non-key column. वापस आते हैं इस टेबल के ऊपर. अब आप अगर देखें यहाँ पर, let me just try to place a pointer. अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो the first table here, इसके अंदर आपको एक ये वाली की जो है membership ID कि प्राइमरी की के तौर पे काम कर रही है. इट इज अ की वैल्यू एट्रीब्यूट. इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच एंड एवरी पर्सन एंड हिज इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली. जबकि यहाँ पे इस सेकंड टेबल को देखते हैं तो मेंबरशिप आईडी जो है वो रिपीटेशन हो रही है उसकी, और हमने ये डिफाइन किया था, ये बात हमने क्लियर की थी कि एक की वैल्यू एट्रीब्यूट कैन नॉट बी नल, a key value attribute cannot be repeated. They cannot be repetition for a key value attribute, and it uniquely identifies each row. तो यहाँ पर तीनों conditions meet नहीं हो रही. That is why this is not acting as a primary key or a key value column membership ID in this table, but it is a key value column in the above table, जो ऊपर वाला table आप देख रहे हैं. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है फॉरेन कीज का. प्राइमरी कीज का तो आपको पता लग गया कि प्राइमरी कीज किस तरह से काम कर रही होती हैं. फॉरेन कीज किस तरह से काम कर रही होती हैं. अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें तो यहाँ पर की वैल्यू थी आपकी लेट्स सपोज 101. यहाँ पर मेंबरशिप आईडी इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा था कि इस पर्टिकुलर बंदे ने कौन सी यहाँ पे बुक ली है, बुक इशू करवाई है. So the primary key in this table is the foreign key, is acting as a foreign key in this table. It is referencing this table. ये सारे concepts आपको मैंने last session में कहे थे कि आप go through करें कि किस तरह से इनके relationships बनते हैं tables के दरमियान, foreign keys क्या होती हैं, primary keys क्या होती हैं. But just to give you an idea, a refresher, you need to know this stuff. And this is very important stuff. Again, मैं आप लोगों को फिर से ये बात कहूँगा कि different types of keys, किस तरह से कौन सी keys होती हैं, इन सारी चीज़ों को आप next session में देख के आइएगा. There are many other types of keys as well. उनके uses, उनकी types, ये सारी चीज़ें देख के आइएगा. Okay, so foreign keys, why are foreign keys necessary? Or why are foreign keys used? Foreign keys are used to identify records separately and to create a linkage between how the tables are related to one another. उनके relationships define करने के लिए हम लोग foreign keys use कर रहे होते हैं. किस तरह से आपस में connected होते हैं, किस तरह से table को access कर सकते हैं हम लोग. अब जो आप लोगों का SQL for data analysis का जो कोर्स दिया हुआ है Udacity के ऊपर, उसके अंदर एक टॉपिक आएगा particularly आपके पास जो आप देखेंगे joins का. तो आप देखेंगे कि किस तरह से different tables को हम लोग join कर रहे होते हैं. And that is basically normally done based on different key value attributes. चाहे वो एक पर्टिकुलर टेबल की प्राइमरी की होगी, वो की जो है दूसरे टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की एक्ट करी होगी, और उनको आपस में किस तरह से हम लोग एक्सेस कर रहे होंगे, ये सारी चीजें जो है आप उस कोर्स के अंदर देखेंगे. और लेटर इन द सेशंस मैं आप लोगों को एक प्रॉपर एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग इन सारी चीजों को करते हैं एक्सेस. But I wouldn't want you to depend on me in that particular regards. I want you guys to do your research as well. आप लोग extensive research करो. एक research करोगे आपको एक और term पता लगेगी, उस particular research के अंदर जो है आप दूसरी नई term को दोबारा से search करोगे तो आपको कोई नई चीज मिल जाएगी. Don't let your curiosity die. Let your curiosity control. आप देखो आपको कितना चीजों का पता लगेगा. So till now you have seen primary key and composite key. A foreign key refers to a primary key column of another table. This helps in connecting two tables and defines a relation between two tables. Foreign key कब बनेगी? उसी conditions होती हैं.
A foreign key column name can be different than a primary key column name. Unlike primary key, they don't need to be unique. ये दोनों चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, but let me go through them again. अगर इस टेबल को हम इन दोनों टेबल्स को देखें हम लोग, तो जरूरी नहीं कि इस टेबल के अंदर भी मेंबरशिप आईडी के नाम से ही ये सारी आईडीज आ रही हो सकता है कि यहाँ पर इसको हम लोग सिंपल आईडी लिखा हुआ हो, मेंबरशिप ना लिखा हो, यहाँ पर आईडी लिखा हो, यूजर आईडी लिखा हो, मेंबरशिप आईडी की जगह मेंबरशिप आईडी ही लिखा हो, लेकिन इनकी कनेक्टिविटी जो हो रही होगी वो इन कीज की बेसिस पर ही हो रही होगी आपस में. So it is not necessary for different tables to have the same column name. Different column name हो सकते हैं, but it is essential for a primary key to be mapped on the primary key of another table. जब तक primary key पे आप लोगों का दूसरे टेबल के साथ कनेक्टेड नहीं होगी foreign key, तो आपका जो है टेबल का कनेक्शन नहीं बनेगा. I hope you are clear on that. अच्छा जी, अब एक चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए जो कि थोड़ी सी सरप्राइजिंग हो सकती है, उसको हम लोग देखते हैं कि क्या है. यहाँ पे वो कह रहा है कि फॉरेन की कॉलम कैन बी नल इवन दो प्राइमरी की कॉलम कैन नॉट. आई एम श्योर कि अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये कैसे करोगे. काइंडली अगर आप लोगों का जो है कोई क्वेश्चन नहीं है तो कीप योर माइक्स म्यूट, पीछे से डिस्टॉर्शन आ रही है. Okay, so as I was saying, कि एक टेबल के अंदर यार, let me just see, somebody's just using this. Somebody's left his mic turned on. Please close the mic. Okay, now all the mics are closed. Good. Let's get back to the topic at hand. अच्छा, मैं आप लोगों से ये बात कर रहा था कि फॉरेन की कॉलम कैन बी नल इवन दो प्राइमरी की कॉलम कैन नॉट. तो ये किस तरह से है? लेट्स सपोज कि एक पर्टिकुलर बंदा आता है, उसका कोई उसने उसकी अपनी एक प्राइमरी, यहाँ पर हर बंदे की अपनी एक प्राइमरी की आप लोगों को नजर आ रही है कि मेंबरशिप आईडी है, लेकिन कुछ ऐसी बुक्स भी हो सकती हैं जिनकी कोई किसी ने कोई ली ही ना हो, बुक्स कैश आउट ही ना कराई हो, इशू ही ना करवाई हुई हो. इन दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस हो सकता है कि आपके पास इस टेबल के अंदर फॉरेन कीज आई ना रही हो. फॉरेन कीज यहाँ पर तब आएंगी, सिंपल एज सिंपल एज दैट, जब आपके पास कोई ना कोई एंट्री होगी कि किसी एक पर्टिकुलर यूजर ने अपनी बुक इशू करवाई है. लेट्स सपोज के यहाँ पर एक न्यू एंट्री आ जाती है, एक न्यू बंदा आ जाता है, ये न्यू बंदी आ जाती है. लेट्स सपोज रफिया इज नाउ अ मेंबर ऑफ दिस बुक क्लब. रफिया के को आईडी असाइन की जाएगी 1004, लेकिन बुक यहाँ पर क्योंकि वो कोई बुक इशू करवाती ही नहीं है फॉरेन की यहाँ पे अपनी जो है व्हेन चेकिंग आउट, तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी. यहाँ पर उसकी नल वैल्यूज आएंगी. जब आप इसको कनेक्शन बनाएंगे, इन दोनों टेबल्स को कनेक्ट करेंगे आपस में, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी. Since she did not issue any books, she did not borrow any books, the book club didn't issue any books to her. The foreign keys columns can be null even though primary key column cannot. I hope that makes sense to you guys. इसको दोबारा रिपीट करें. Sorry, एग्जाम्पल को दोबारा रिपीट करें कि कैसे फॉरेन की अगर ना हो और उसके आगे मिसाल के तौर पर बुक इशूड में हो और मेंबरशिप आईडी नीचे वाले में ना हो. okay, let me just revise my statements. मैंने आपसे कहा कि लेट्स सपोज आप जो पहला जो टेबल देख रहे हैं, दैट कंटेन्स क्लब मेंबर इंफॉर्मेशन. ठीक है, बुक, दिस होल सिनेरियो इज रिलेटेड टू अ बुक क्लब. जो क्लब मेंबर इंफॉर्मेशन है
उसके अंदर आपके पास एक न्यू एंट्री आ गई। मैंने रफिया की एग्जांपल की थी कि कोई भी मिसेस रफिया जो है या फिर मिस रफिया जो है वो यहाँ पर आ गई हैं, उनको यूनिक की एक अलॉट कर दी गई 1004, उनका एक पर्टिकुलर एड्रेस भी आ गया। अब ऑल्दो शी इज अ मेंबर, जब आप इन दोनों टेबल्स को आप ये चेक करना चाहेंगे, आप रिट्रीव करना चाहेंगे डेटा कि कौन से मेंबर ने कौन सी बुक्स इशू करवाई थी, आप इन टेबल्स को ज्वाइन करेंगे आपस में, आप कनेक्टिविटी बनाएंगे आपस में। आपके पास रिकॉर्ड्स बाकी सबके तो आ रहे होंगे कि इस बंदे ने यहाँ पे ये वाली बुक इशू करवाई थी, इस बंदे ने जॉन मिल ने जो थी आपके पास 10x रूल, टाइटैनिक, लीडर ईट्स लास्ट, ये वाली बुक्स इशू कराई, और बाकी उन्हें जो करवाई वो यहाँ पर मेंशन्ड है। रफिया ने लेट्स सपोज कोई बुक इशू करवाई ही नहीं है, तो इस वाली टेबल में उसकी वैल्यूज यहाँ पर नल है, आप देख सकते कोई वैल्यू ही नहीं है। तो फॉरेन की कॉलम कैन बी नल इवन दो प्राइमरी की कॉलम कैन नॉट। नीचे वाले कॉलम में बुक इशूड वाला नल होगा ना, मेंबरशिप आईडी कैसे नल है? आप यहाँ पर जब इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो आप इनकी इस टेबल की प्राइमरी की जो है दैट इज एक्टिंग एज अ फॉरेन की है, राइट? बिल्कुल। जो फॉरेन की यहाँ पर आपके पास नल है, यहाँ पर आपके पास कोई बुक ही इशू नहीं करवाई हुई, तो वो तो नल आएगी ना आपके पास उसकी वैल्यूज। ओके, नाउ आर वी क्लियर ऑन दैट? सर एक यस क्वेश्चन है, ये जो जी, हम जी, लोगों ने बताइए। ये कॉलम जो सेकंड कॉलम एक्सट्रैक्ट किया है, जो फॉरेन की वाला कॉलम है, ये तो हम लोगों ने जी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बना के एक्सट्रैक्ट किया है, ऐसा ही है? कुड यू रिपीट दैट? सर ये जो सेकंड कॉलम है फॉरेन की वाला, ये हमने इसलिए बनाया था क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को डिफाइन कर रहे थे, सॉरी सेकंड नॉर्मल फॉर्म को हम डिस्कस कर रहे थे जब। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जब कॉलम बना उस टाइम पे, तो वहाँ पे जो फर्स्ट मतलब जो बेसिक कॉलम था फर्स्ट वाला, उसमें तो ये वाला डिटेल्स नहीं थी, वो तो कॉलम एग्जिस्ट ही ना करता अगर वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ही ना होता। वो फर्स्ट वाला कॉलम जो बेसिक कॉलम है, वो टेबल जो है, बेसिक टेबल जो है, वो तो एग्जिस्ट ही ना करता अगर वहाँ पे बुक्स ना होती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे वो वाली एग्जांपल जो है वो सिर्फ सिनेरियो बेस्ड बता रहे हैं आप नल वाली, या ये इसी तरह एज इट इज एग्जिस्ट करती है? यार ये देखिए, मैं आपको जो है ना क्लैरिफाई करता हूँ आपका जो क्वेश्चन है। लेट मी रीस्टेट योर स्टेटमेंट जी, to see if I understand your problem statement correctly. मुझे ये समझ आ रही है कि आप कह रहे हैं कि अगर इसको हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते ही ना, तो हमें इसकी जरूरत पड़ती कि इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज आ रही होती। आप यही सवाल है ना? नहीं इस तरह नहीं है सर। सर देखिए, बेसिक जो सबसे पहला वाला हमारे पास कॉलम था, सॉरी टेबल था, उसको हम लोगों ने नॉर्मलाइज किया, फर्स्ट नॉर्मलाइज किया, तो हमारे पास ऊपर वाला जो टेबल है ये बना। जब सेकंड नॉर्मल फॉर्म उसके ऊपर अप्लाई किया, तो वो हमारा ये मेंबरशिप आईडी और बुक्स इशूड वाला ये जो थर्ड कॉलम है ये बना, थर्ड टेबल बना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब अगर फर्स्ट टेबल में ही वो इन्फॉर्मेशन अगर ना होती, तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ही ना बनती। अगर आप कह रहे हैं कि राफिया की एग्जिस्टेंस है लेकिन उसने बुक नहीं इशू करवाई, तो वो जो बेसिक हमारा टेबल था, तो वो टेबल ही गलत हो जाता। इस टेबल की बात कर रहे हैं आप? जी इस टेबल की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे राफिया एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो बुक्स इश्यूज वाला जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है ये ब्लैंक हो जाता। तो इसकी बेस पे हम लोग 2NF कर ही ना सकते। 2NF की कंडीशंस हमारे पास ये थी, सिंपल सी, इट टेबल मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जी, every non-key attribute must be fully dependent on key attributes. समझ रहे हैं आप कि every non-key attribute must be fully dependent on key attributes. इधर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि ये नल होता या ना होता। यहाँ पे नल और नॉन नल की बात नहीं की हुई, यहाँ पर सिर्फ ये बात की हुई है कि टेबल मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, और यहाँ पर ये बात की हुई है कि every non-key attribute must be fully dependent on key attributes. ठीक है सर। अगर लेकिन रफिया वहां पर होती भी तो उसकी नल वैल्यूज होती तो कोई मसला नहीं है वहां पे। ठीक हो गया सर।
अब क्लियर है। Any more questions? Okay, so I'm assuming there are no more questions क्योंकि किसी ने मुझे अभी तक reach out नहीं किया। तो we've got another question. बुक्स के अंदर आएगा। Books के अंदर आएगा। Okay. So moving on forward, reason for foreign key. When a user tries to insert a record into books issued table, if there is no membership ID exists in membership details table, it will be rejected. This way we maintain data integrity in RDBMS. If there is no record with membership ID in the parent table, it will be rejected and database will throw an error. As simple as that. बहुत सिंपल सी बात है ये कि अगर आपके पेरेंट टेबल के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही वो चीज, उसकी कोई आईडी नहीं है और आप उसके अंदर जो है इंस्टॉलेशंस करवा रहे हैं, तो डेटा का ऑटोमेटिकली जो रो होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी आपकी. इट वुडंट मेक सेंस टू हैव समथिंग दैट डजंट हैव अ यूनिक आईडी. अगर हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो इसके अंदर डेटा मस्ट बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होने के साथ साथ इसकी एक और कंडीशन भी है दैट देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसीज. तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज क्या होती हैं? अब in simple terms, if changing a non-key column causes any other non-key column to change, then it is called as transitive dependency. एक दफा इसको आप दोबारा से अपने माइंड्स के अंदर जो है ना इस स्टेटमेंट को रीड आउट करें. I'm going to give you guys 10 seconds. In simple terms, if changing a non-key column causes any other non-key column to change, अगर एक non-key column की वजह से एक दूसरा non-key column जो है वो change हो रहा है, तो transitive dependency है. इसकी एग्जांपल देखते हैं. If we change full name of the customer, it might change salutation. That totally makes sense. कि अगर full name को change कर दिया जाए customer के, उसकी salutation को भी change करना पड़ सकता है. उसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ले जाने के लिए जिस तरह से मैंने आप लोगों से कहा था कि उसको अगर हम लोग फर्दर डिवाइड कर दें कि किस तरह से हमारे पास सैल्यूटेशंस को मेंटेन किया जा सके प्रॉपरली, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सैल्यूटेशंस की डिपेंडेंसी रिमूव करने के लिए, जो फुल नेम डिपेंडेंट था सैल्यूटेशन के ऊपर, उसको चेंज करने के लिए we shifted the salutation to another table altogether. उसको हमने यूनिक कीज दे दी 1 और 2. उससे क्या हुआ अभी आप देखिएगा. तो हमने क्या किया? हमने सिंपली सैल्यूटेशन आईडी दे दी, मिस्टर को 1 दे दिया, मिस को 2 दे दिया, मिसेस को 3 दे दिया. हमने 3 सैल्यूटेशंस बना ली. इसका फायदा क्या हुआ हमें? Let's suppose that there was this member John Mill, right? अब जॉन मिल की जगह जो है उनकी वाइफ आ जाती हैं, लेट्स सपोज मरिया सैंचेज. मरिया सैंचेज की जब यहाँ पर आईडी हमने रिप्लेस कर दी है, मेंबरशिप आईडी रिप्लेस कर दी, तो उनकी सैल्यूटेशन ऑलरेडी चेंज हो गई. तो अवॉइड rather than going straight into the record and defining कि कहाँ पे इनकी डेटा चेंज हो रहा है, सैल्यूटेशन चेंज हो रही है, हम लोग क्या करेंगे? We would simply just access the records as defined here और उनको हम ऑर्डर कर देंगे. As simple as that.
salutation in the first place. For example, अगर हमने वो जॉन से मरिया हो गया तो मतलब ऑटोमेटिक वो डिस्प्लेस से मिस मिलेगा। वो सिर्फ इसलिए है कि अगर ऑन दी ऑफ चांस के आपके जो रजिस्टर्ड बंदा है उसकी जगह कोई और आ जाए एंड दे यूज द सेम प्राइमरी की, तो यू कैन अपडेट दैट कन्वीनियंटली। Is that is also one of the reasons. Another reason is कि let's suppose कि आप salutations के अंदर ही चेंजिंग करें, आपके पास जितने भी मिस्टर्स थे अभी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए, राइट? हो सकता है कि आप फर्दर जाके इस सैल्यूटेशन को लॉन्ग फॉर्म में कर दें। एक सिंपल सी एक ये भी केस सिनारियो है कि यहाँ पे MR लिखा हुआ है, बजाय इसके कि आप जाके जितने भी यहाँ पर आपके पास लेट्स सपोज थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैं, उनकी थाउजेंड्स ऑफ सैल्यूटेशंस आ गई आपके पास, ठीक है ना? अब बजाय इसके कि आप जाके एक एक रो के अंदर मिस्टर 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 अपडेट करें, व्हाट यू वुड डू इज सिंपली अपडेट मिस्टर इन दिस टेबल। इस टेबल को आप सिंपली ज्वाइन करेंगे इसके साथ, तो आपके पास अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी। यू वुडंट हैव टू मेक मल्टीपल अपडेशंस थ्रू आउट द डेटा। सॉरी फॉर गेटिंग इट। Are we clear on that? Any questions so far regarding the third normalization? So our time is up.